Good morning, students. Today we will discuss about the dispersion of light through a glass prism. So first of all, let me know what is a prism. So prism is a portion of transparent media bounded by two plane faces inclined each other at a suitable angle. Okay, like this. This is a diagram of prism. So a line AP line where the two reflecting surface meet. Two reflecting faces meet. This is the first phase, this is the second phase, और ये phase third आ रहा है. So where two reflecting surface meet is called the reflecting edge of the prism, and a section ABC of a prism made by a plane at right angle to the reflecting edge of the prism is called as principal section of the prism. Now we will find the relation delta is equal to mu minus 1 into A, and we will prove the prism formula by using this diagram. Now अब इसको हम देखेंगे कैसे प्रूव करना है. In glass prism, a ray of light suffer two refractions on passing through a prism and hence deviate through a certain angle from its original path. So first part of this is number 1, calculation of angle of deviation. Calculation of angle of deviation. एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा आएगा. सो एंगल ऑफ डेविएशन चेक करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रे डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी. लेट अस सपोज दैट KL इज द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट दैट इज इंसिडेंट ऑन द फेस AB. नाउ यहाँ से अब रिफ्लेक्ट होगी रे ऑफ लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम में जा रही है. सो इट वेंट टूवर्ड्स नॉर्मल, स्लाइटली वेंट होगी इस साइड. तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. यहाँ से इस सरफेस पे AB सरफेस के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. लेट दिस इज द नॉर्मल N1O. ओके, नाउ अगेन इस सरफेस के ऊपर भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. सो लेट सपोज दैट दिस इज द सेकंड सरफेस AC and N2O is the normal of this surface. So LM is the refracted ray. Now again refraction takes place at this point M. सो यहाँ पर फिर आपके पास डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रही है. सो इट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइक दिस. ओके, सो इफ वी इसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे, इफ वी एक्सटेंड दिस लाइन KL यहाँ तक लेके जाएं और इस लाइन को एक्सटेंड करें MN को, तो यहाँ तक लेके आए. सो जो हमारे पास ये एंगल बनेगा, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन. Let this point is P. So we have to find out the value of delta in case first. Okay, so calculation of angle of deviation, this is the first case. This is the diagram of prism. This is the angle of prism. This is angle A B C आपके पास आ रहे हैं. So करेंगे आप कैलकुलेट से. area of light KL, ये हमने जो एक्सप्लेन किया वही बता रहा हूँ दोबारा फिर. area of light KL is incident on face AB. Okay, of the prism at angle I. This angle is I1. It is refracted along LM at angle R1. This is the angle of refraction, angle between the normal and refracted ray. This is again angle, this is angle is, let this angle is R2. Okay, and this angle is I2. So अब हमारे पास आकर लेट एंगल Q यहाँ पे है QPN. Angle QPN is equal to delta. Angle QPN is equal to delta. Okay. Now in triangle PLA, अब PLM triangle आपके पास है. Triangle PLM. So as we know that sum of interior angle is equal to exterior angle. We know that sum of interior opposite angles is equal to exterior angle. So बच्चे इसमें देखना आपने एक्सटीरियर एंगल ट्राइंगल आपके पास है PLM, तो इंटीरियर एंगल आपके पास आ गए PLM एंड PML. तो एक्सटीरियर एंगल आ गया आपके पास डेल्टा. सो डेल्टा इज इक्वल टू एंगल PLM और PML. These are the anterior angle and this is the exterior angle. Okay, so delta is equal to
देखो यहाँ पर एंगल I1 है, ये एंगल आपके पास I1 है, ये एंगल कैलकुलेट करना है। दिस एंगल इज वर्टिकली अपोजिट टू दिस एंगल, सो I1 इज इक्वल टू PLM प्लस R1। सो इफ वी कैलकुलेट द PLM तो ये आएगा आपके पास I1 माइनस R1। सिमिलरली यहाँ पे भी आ जाएगा I2 माइनस R2। ओके, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। ये टू एंगल्स आ गए आपके पास। सो डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ पे हम I1 को सेपरेट इकट्ठा कर लेते हैं, I1 प्लस I2 माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर आएगा R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्राइंगल OLM, ट्राइंगल आ रही है आपके पास OLM। अब ट्राइंगल में हम यूज करेंगे वह एंगल सम प्रॉपर्टी, वह एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी आप सभी को याद है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, जितने भी एंगल आ रहे हैं उसका सम होता है 180 डिग्री। एंगल O प्लस R1 प्लस R2, सो एंगल O प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो वी हैव, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ALOM, इन क्वाड्रिलेटरल ALOM, तो उसमें आएगा आपके पास एंगल A और एंगल O का सम जो आ रहा है, एंगल A प्लस एंगल O दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल O दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। एंगल A प्लस एंगल O दिस इज इक्वल 180 डिग्री, बिकॉज जो आपके पास अपोजिट एंगल्स होते हैं कोऑर्डिनेटर के, उसके एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। नाउ इक्वेशन 2 में आपके पास 180 के इक्वल आ रहा है, क्वेश्चन 3 में 180 के इक्वल आ रहा है। कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 3। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी हैव एंगल O प्लस R1 प्लस R2 दिस इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल O। देखो O से O कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो यहाँ पर आएगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। सो अब इसमें क्या करेंगे, एंगल आपके पास आ रहा है डेल्टा की वैल्यू R1 प्लस R2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ गई है। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सो वी हैव डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 R2 की जगह पे आपके पास आ जाएगा A माइनस A। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। नाउ अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग आता है म्यू इज इक्वल टू साइन I1 अपॉन साइन ऑफ R1। ओके, इफ एंगल्स आर वेरी स्मॉल, when angles are very small, so we can write it as this is equal to I1 upon R1। अगर एंगल स्मॉल ऑफ साइन I is nearly equal to I1, साइन R1 is nearly equal to R1, so we can write it as I1 is equal to mu into R1। Similarly, I2 is equal to mu into R2। So put the value in equation number 5, put in 5, so we have delta is equal to mu R1 plus mu R2 minus A। So delta is equal to, taking mu as common, into R1 plus R2 minus A। So we have, अब देखो हमारे पास डेल्टा की वैल्यू आ गई है म्यू इंटू R1 प्लस R2 माइनस A। अब R1 प्लस R2 की वैल्यू हमारे पास थी A, तो इसको लिख सकते हैं हम डेल्टा इज इक्वल टू म्यू इंटू A माइनस A। सो अगर हम A कॉमन ले लें इसमें, तो हमारे पास बचेगा म्यू माइनस 1 इंटू A। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। दिस इज द फर्स्ट मेथड जो आपके पास हमने कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट द एंगल ऑफ डेविएशन। तो बच्चे ये हमारा प्रूव हो गया। अब सेकंड टॉपिक जो है डेरिवेशन ऑफ प्रिज्म फॉर्मूलाज को ड्राइव करेंगे हम नेक्स्ट। सेकंड पार्ट इज डेरिवेशन ऑफ प्रिज्म फॉर्मूला, डेरिवेशन ऑफ प्रिज्म फॉर्मूला। अब हम प्रिज्म फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ओके, सो वी नो दैट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास थी डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A। सो ये इक्वेशन हमने 5 निकाली थी। सो इक्वेशन नंबर 5 से करेंगे, देखेंगे द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ प्रिज्म।
एंगल ऑफ प्रिज्म ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस R1 प्लस I2। इनिशियली व्हेन I इज इंक्रीज देन डेल्टा डिक्रीजेज। डायग्राम से देखेंगे अगर हम I को इंक्रीज करेंगे, इसको इंक्रीज करेंगे तो डेल्टा जो डिक्रीज करता जाएगा, रिचेज टू ए मिनिमम वैल्यू एंड इंक्रीजेज अगेन विद द इंक्रीजिंग I। पहले स्टार्टिंग में I1 इंक्रीज करेंगे, डेल्टा डिक्रीज करेगा, अगेन I और इंक्रीज करेंगे तो डेल्टा जो है वो डिक्रीज करना शुरू करेगा। नाउ इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन I1 इज इक्वल टू I2, ये कंडीशन लगानी है अपने। डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम, डेल्टा इज इक्वल डेल्टा एम मीन्स एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, डेल्टा एम इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, डेल्टा इज दैट एंगल ऑफ डेविएशन। तो डेल्टा इज इक्वल डेल्टा एम कब होगा, इफ I1 इज इक्वल टू I2, देयरफॉर और एक और आएगा R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R। सो हमारे पास बचेगी इक्वेशन थी हमारे पास R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R A था, देयरफॉर ये बन जाएगा R प्लस R इज इक्वल टू A। सो 2R इज इक्वल टू A, ओके। सो R इज इक्वल टू A बाई 2, R इज इक्वल टू A बाई 2। सेकेंड थिंग आएगी आपके पास डेल्टा M इज इक्वल टू I प्लस I1 प्लस I2 को मैंने I रख दिया माइनस A। सो डेल्टा M इज इक्वल टू 2I माइनस A। सो डेल्टा M प्लस A इज इक्वल टू 2I। So we have I is equal to delta M plus A divided by 2. Now we have two angles, that is R and I. Now according to Snell's law, mu is equal to sine of I upon sine of R. So sine of I आपके पास एंगल आ गया ये A प्लस डेल्टा M डिवाइड बाई 2 ओवर साइन ऑफ R की वैल्यू आपके पास है A बाई 2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रिज्म फॉर्मूला, ओके। इट इज यूज्ड फॉर द एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ विच द प्रिज्म इज मेड। इफ वी ड्रॉ ए ग्राफ, अगर इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो हमारे पास इस तरह से बनता है। लेट सपोज दैट दिस इज द डेल्टा M, यहाँ से वैल्यू यहाँ पे आ रही है, इस तरह से ग्राफ बनता है। दिस इज अ डेल्टा M, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा M, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास एंगल आएगा दिस इज I1, यहाँ पे जो एंगल आएगा दिस इज I, और ये आपके पास एंगल आएगा I2, ओके। इस साइड अपना I लेना है, इस साइड अपना डेल्टा लेना है। सो दिस इज द ग्राफ फॉर द प्रिज्म फॉर्मूला। तो इस तरह से ग्राफ जो आपका प्लॉट होता है, ओके। So students, this is all about the prism formula and angle of deviation. I hope you all understand this topic. Thank you very much.